Hello students, today we are going to take an important topic from the reading section of your question paper. Okay, so in reading section we are going to do note making. Okay, and the question of note making carries 8 marks. And these 8 marks are divided into 2 parts. 4 marks are given for note making and 4 marks are given for summary. Okay. So in this way these 8 marks are given to the students who have correctly answered the question. In note making you will be given a passage. Okay, the passage will be of near about 800 to 1000 words. Okay, and you are to make notes out of that. Okay, so उसमें आपको 2 पार्ट हो गए आपके, एक तो आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं, एक उस पूरे पैसेज की आपको समरी लिखनी है. तो इस तरह से आपको उस क्वेश्चन में कितने 8 मार्क्स मिलेंगे. So, what is, let's see, first of all the question to be answered is what is note making? What is note making? Okay, so to answer the question, if you answer the question, note making is the process of what? Process of organizing, arranging and collecting the ideas or facts of the passage that they give a comprehensive understanding of the passage. ओके, सो क्या है नोट मेकिंग? क्या है नोट मेकिंग? इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग एंड कलेक्टिंग द आइडियाज और फैक्ट्स ऑफ द पैसेज. कि आपके पास वो 800-900 वर्ड्स का जो पैसेज है उसमें से आपको आइडियाज को आपने ऑर्गेनाइज करना है, एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना, अरेंज करना है और उनको कलेक्ट करना है, मींस सीक्वेंस में उनको अरेंज करना है, सो दैट it gives a comprehensive understanding of the passage. कि आपको उन फैक्ट्स को जो आप नोट्स बनाने जा रहे हैं, those will be 10 to 12 to means maximum 15 points. So after reading those 10 to 15 points, you have a comprehensive understanding of the passage. You have a good understanding of the passage. आपको समझ में आ जाए कि उस पैसेज में क्या कहा गया है या वो किसके बारे में. So that is what note making is. So note making is the process of organizing, arranging and collecting the ideas or facts of the passage. जो पैसेज में दिए हुए आइडियाज उन्हीं को आपने लिखना है. Suppose sometimes what happens, students try to give their own ideas, own facts, own data, है ना, रिगार्डिंग दैट पैसेज. कि आपने कोई एग्रीकल्चर के ऊपर है और उसमें कोई ओल्ड डाटा है ना, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स व्हाट डू द स्टूडेंट्स डू, क्या करते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि दिस शुड बी दिस. नो, वी आर टू अरेंज द आइडियाज ऑफ द पैसेज ओनली. ओके, हमें वहीं से जो मटेरियल है, वहीं से जो चीजें हैं उन्हीं को हमें अरेंज और ऑर्गेनाइज करना है और इस वे में ऑर्गेनाइज करना है कि हमें उस पूरे पैसेज की एक अच्छी गुड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो आपके उन पॉइंट्स को, नोट्स को पढ़ने के बाद. Got it? So that is note making. So now
द क्वेश्चन ऑफ नोट मेकिंग, एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है नोट मेकिंग का, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पार्ट 1 इज ऑफ नोट मेकिंग and part B. Okay, part A is of note making and part B is of summary. So first of all we are discussing this thing. We are discussing what is note making. Now let's see. So students, first of all, the question of note making or the part of note making has three components. तीन चीजें इसको मिलकर बनाती है इस क्वेश्चन को. फर्स्ट टाइटल, सेकंड नोट्स and third one is abbreviations. Okay. So there are three parts of the note making question. कि आपने समरी वाला बी पार्ट अलग से है. We are discussing only about A part first. Okay. So इसमें आपको क्या करना होगा? On the understanding of the passage, on the basis of understanding of the passage, try to give a suitable title for that passage. Okay. एक अच्छा सा टाइटल वहाँ आप लिखने की कोशिश करें. उसके बाद आपको उसमें से अपने नोट्स बनाने हैं. जो भी आपको लगता है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट या दिस इज एन इम्पोर्टेंट आइडिया डिस्कस्ड इन द पैसेज, वो आपको लिखना है. और उसके बाद आपने क्या लिखना है? उसके बाद आपने एब्रिविएशंस लिखनी है ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स. मिनिमम एब्रिविएशंस आपने 4 लिखनी होती हैं. तो आपने उसमें कम से कम 4 एब्रिविएशन मींस लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है. तो दैट इज व्हाट एब्रिविएशन इज. सो इन दिस वे द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. Got it? Now let's take the first thing. First of all, let's take the title. Title should be written in the center of the page or the middle of the page. Title word should be written there. Okay? ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सीधा टाइटल लिख दिया. आप टाइटल वर्ड लिखेंगे, then you put a colon there. Okay? और फिर आपने उसको टाइटल लिखना है. मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिकल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उस लेक्चर में भी बताया था, कभी भी एक वर्ड में टाइटल नहीं होता है. ओके, सिंगल वर्ड का टाइटल नहीं होगा. और नॉट द टाइटल शुड बी वेरी लेंथी. ओके, ऐसा नहीं है कि आप उसको 6-7 वर्ड्स में लेकर जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. टाइटल शुड बी ऑफ 4-5 वर्ड्स. 10 to 12 मीन्स आप कई लाइन लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है. Just stick to 4 or 5 words and try to make the title impressive because it carries 1 mark. It will give you 1 mark. Okay? क्योंकि देखिए, अगर आपने टाइटल आप गलत लिख रहे हैं तो it means you don't have read the passage thoroughly. आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस पैसेज को लेकर, तो आप नोट्स भी उसी तरह के बनाएं. Okay, so your title is the first impression about your understanding of the passage. जितना अच्छा आप टाइटल लिखेंगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपने नोट मेकिंग में क्या किया है. Okay, so that's what we need to do. Okay, so टाइटल आप कैसे लिखेंगे? टाइटल लिखेंगे जैसे मान लीजिए कि आप किसी उसके ऊपर लिख रहे हैं, किसी इवेंट के ऊपर लिख रहे हैं, किसी थ्रेड के ऊपर लिख रहे हैं, किसी उस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, तो आप उसको लिखने की कोशिश करें अच्छे तरीके से. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट, अगर आप हमारे पास टाइटल है मान लीजिए पोल्यूशन. ओके, ए ग्लोबल थ्रेट. Try to write like this. Okay, pollution a global threat means आप उसका सबटाइटल लिखने की कोशिश करें. सबटाइटल उसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि वो चीज़ है क्या. टेररिज्म a global threat. Okay, global warming a global threat. Okay, तो इस तरह से आप लिखे फीमेल फेटिसाइड कोलन a social evil. Okay, फीमेल फेटिसाइड a curse on women. तो इस तरह से उस टाइटल को आप सबटाइटल के साथ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. So that is what how we are to write the title. अब क्या करना है आपको? टाइटल लिखने के लिए क्या करना है? वही फॉर्मेट फॉलो करना है आपको. क्या कि the first letter of each and every word should be capital. Barring, excepting, किनको छोड़ना हमें? Prepositions, articles, conjunctions और helping words. In case अगर आपके पास words हैं
तो आपने क्या रखना है, उनका फर्स्ट वर्ड भी स्मॉल ही रहेगा, अनलेस और अनटिल दे आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल। देखिए क्या चीजें हैं, मैंने आपको क्या बताया, प्रीपोजिशंस, ओके, सेकंड आर्टिकल्स, conjunctions, and last one is helping verbs। तो इनको आपने क्या करना है, इनको आपने स्मॉल रखना है, ओके, थोरोली स्मॉल रहेंगे ये। अगर ये फर्स्ट वर्ड नहीं है तो टाइटल का, सपोज एज आर्टिकल, एन आर्टिकल, और ये क्योंकि फर्स्ट उस पे आ रहा है तो हमने इसको कैपिटल रखा है। अगर बीच में हमने कहीं पर लिखना होता ऑफ ए द, तो हम उनको क्या लिखेंगे, हमेशा स्मॉल लिखेंगे। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी आर टू राइट द टाइटल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। After this we will be writing notes, the word notes। ओके, जहां पर आपकी मार्जिन लाइन होती है उसके बिल्कुल पास आपने लिखना है नोट्स, ओके। एंड आफ्टर राइटिंग नोट्स इन नेक्स्ट लाइन वी विल कम हियर। आई एम डिस्कसिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग द फॉर्मेट, ओके, फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग क्या है। उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग द की पॉइंट्स, ओके। की पॉइंट्स मींस कैसे आपने एब्रिविएशंस को, सॉरी, आप अपने नोट मेकिंग को और अच्छा बना सकते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब आपने क्या करना है कि वी विल राइट वन, ओके। नाउ व्हाट इज वन? वन इज कॉल्ड मेन हेडिंग। नाउ व्हाट इज मेन हेडिंग? मेन हेडिंग मींस फर्स्ट मेजर आइडिया, ओके। मींस जब आप उस पैसेज को पढ़ते हैं तो इन पैराग्राफ 1 और 2 यू कम अक्रॉस ए थिंग, आपको कोई चीज ऐसी लगती है जिसके बारे में ये लगता है कि यस दिस इज द मेजर आइडिया, मेजर फैक्ट डिस्कस्ड इन दिस पैसेज। सो ट्राई टू मेक दैट फर्स्ट पॉइंट, उसको आप क्या बनाए, पहली अपनी मेन हेडिंग, ओके। सो दैट इज कॉल्ड मेन हेडिंग। अब क्या होता है कि you are to write like this 1.1, 1.2 and 1.3। now what are they? They are called secondary ideas, okay। secondary ideas मेजर आइडिया के वो सब पार्ट्स होते हैं, वो उसी को आगे इलस्ट्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मेजर आइडिया को, एंड उनको हम नोट मेकिंग में क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सब हेडिंग्स। क्या बोलते हैं उनको? सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग्स इज द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन हेडिंग, यानी कि आपने यहाँ पर जो लिखा है वो एक्सप्लेन होना चाहिए इसमें, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सब पॉइंट्स शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द मेन पॉइंट, है ना, दे शुड बी एसोसिएटेड विद द मेन पॉइंट, उससे अलग नहीं होनी चाहिए, ओके। यानी कि जैसे मान लीजिए इफ यू हैव फॉर एग्जांपल टाइटल इज पोल्यूशन एंड फर्स्ट पॉइंट वी हैव रिटन एज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जब आप नोट मेकिंग कर रहे हैं तो आपने देखा कि जो आपका पहला पॉइंट बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, उसमें मेंशन किया हुआ, तो यू विल बी राइटिंग लाइक दिस 1.1 फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट यू विल बी राइटिंग वाटर पोल्यूशन, and third is noise pollution, okay। there are many types of pollution but we will not discuss that। में हमें क्या करना है, जैसे हमने मेन हेडिंग क्या बनाया है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो ये इसकी टाइप्स ही हो। इफ यू हैव रिटन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, तो आपको इन तीनों पॉइंट्स में सिर्फ उसके कॉजेज ही डिस्कस करने हैं। इफ यू आर राइटिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, तो आपने इन चीजों में सिर्फ इफेक्ट्स की ही बात करेंगे, यानी कि क्या हुआ, सब हेडिंग शुड बी एक्सप्लेनिंग मेन हेडिंग, ओके। गॉट इट? समझ में आ गई ये बात आपको, क्या कि मेन हेडिंग से जुड़ी हुई होनी चाहिए सब हेडिंग, कि इस मेन हेडिंग इज द मेजर आइडिया एंड दीज आर द सेकेंडरी आइडियाज ऑफ दिस मेजर आइडिया। इसी को वो क्या कर रहे हैं, आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो गॉट इट? ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू
तो यानी कि क्या होगा कि वी विल ट्राई टू राइट एटलीस्ट 3 सेकेंडरी आइडियाज। ओके 1 2 मींस आप क्या लिखेंगे, एटलीस्ट 3 सब हेडिंग शुड बी देयर। ओके सब हेडिंग्स और सब हेडिंग। Okay, and if you can write 4, that is right. Means now there is no scope for the examiner or the checker to deduct any marks out of your in your notebook. So now let's move to the second thing. अब हम क्या करेंगे, we will be writing point 2, यानी कि ये क्या होगा आपका सेकंड मेजर आइडिया। सेकंड मेजर आइडिया मींस आपने एक चीज को एक्सप्लेन कर लिया है, अब दूसरी चीज आप देखिए उसमें क्या हो सकती है, यानी कि सेकंड मेजर आइडिया, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं इन द नोट मेकिंग मेन हेडिंग, यानी कि दैट विल बी अवर सेकंड मेन हेडिंग। हम पॉइंट्स बना रहे हैं ना, ओके तो ये क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट्स लिखिए, ये पॉइंट है। अब आपको इनको लिखना कैसे है, आपने वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट ओनली, सो व्हाट इज द नेसेसिटी टू राइट दैम, मींस आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वी विल बी टॉकिंग आफ्टर द अबाउट दैट आफ्टर द फॉर्मेट। ओके सो सेकंड मेजर आइडिया, और उसको हम क्या बोलते हैं मेन हेडिंग। अब आप क्या करेंगे 2.1 2.2 एंड 2.3, यानी कि यहां पर आपके क्या रहेंगे सेकेंडरी आइडियाज, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस। यानी कि मान लीजिए आपको सेकंड पॉइंट में भी ऐसे बात करता है कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। ओके तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 2.1 2.2 2.3 में आप क्या लिखेंगे कॉजेज यूज क्या मेंशन करेंगे। ओके सो दैट विल बी योर फेयर नोट मेकिंग। अब आपने 2.1 सब हेडिंग ओके सब हेडिंग, यानी कि these सब हेडिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग। गेटिंग माय पॉइंट, क्या कि जो ये मेन सब हेडिंग्स है ये इससे लिंक्ड होंगी, इससे एसोसिएटेड होंगी, इससे कनेक्टेड होंगी। ये जो सब हेडिंग है वो इस सेकंड मेजर आइडिया से कनेक्टेड होंगी, एसोसिएटेड होंगी, लिंक्ड। ओके नाउ लेट्स मूव after that the same process will go on for third। okay यानी कि थर्ड मेन हेडिंग 3.1 3.2 एंड 3.3। ओके तो ये आपके यहाँ पर सब हेडिंग्स रहेंगे। देन फोर्थ मेन हेडिंग ओके 4.1 4.2 एंड 4.3। okay and if you can write 4 that will be very good। 4.4। now take care of one thing more, मींस जब आप मेन हेडिंग की बिगिनिंग बिल्कुल आइडेंटिकल, सो मींस ये आपका ये पॉइंट जो है ये 1 2 एंड 3 एंड 4 वो क्या होने चाहिए आपके बिल्कुल एक दूसरे से नीचे एक ही लाइन में होने चाहिए। मेन हेडिंग की बिगिनिंग की जो है वो एक जगह से होनी चाहिए। जो ये आपके सब हेडिंग्स हैं ये थोड़ा सा आगे हो, हटके हो, मींस 3 ये ऐसा लगे कि ये दैट शुड बी इन दिस। स्टूडेंट्स लाइक द राइट लाइक दिस समटाइम 3.1 3.2, so this is wrong way। if you have written 3 here, so your 3.1 should be here। ठीक है अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, ये हो गया अपना 4.1 4.2 एंड देन मूव टू 5th। if you understand the passage very well, then try to make the 5th point as well, if not fourth point are sufficient। okay now there is one more thing, and what will we call that subheadings। subheading okay now what is this, suppose you have written fourth main heading, okay and you are writing 4.1 4.2 and 4.3। now you think that the 4.3 जो चीज आ रही है उसमें जो फैक्ट है वो आगे भी एक्सप्लेन हो सकता है। तो आप जिस तरह से ये मेन हेडिंग है इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है सब हेडिंग, तो इसी तरह इस सब हेडिंग की जो फर्दर एक्सप्लेनेशन होगी वो क्या होगी, दैट विल बी सब हेडिंग। यानी कि आपका उसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ही थोड़ा आगे से लिखेंगे 4.3.1 4.3.2 4.3.3
3. Okay, that is how you will write. क्या लिखेंगे आप ऐसे? सब हेडिंग. ओके, कि भाई मेन हेडिंग यहाँ से, इससे आगे थोड़ा सब हेडिंग, और अगर आप सब हेडिंग को भी किसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दोज आर कॉल्ड सब हेडिंग्स, और उसको भी थोड़ा आगे से आपने स्टार्ट. सो दैट इज हाउ वी आर सपोज्ड टू राइट सब हेडिंग. ओके, तो इस तरह से हमारे 4 पॉइंट्स जो है इसमें कंप्लीट होते हैं. नाउ सपोज ये आपके 1 है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ. ओके, और यहाँ पर इसकी जो है सब हेडिंग्स आपने यहाँ पर लिखी हुई. अब हमें क्या करना है, जहां पर हमारा जो है 4th पॉइंट खत्म होता है, उससे नेक्स्ट लाइन में, जैसे यहाँ पर आपकी लाइन है, उससे नेक्स्ट लाइन में आप जाएंगे और इस तरह से राइट हैंड साइड में यू विल मेक ए बॉक्स एंड यू विल राइट की टू एब्रिविएशंस. Key to abbreviations. Now, what are the abbreviations? Abbreviations are the short forms of words, abbreviated forms. Okay. For example, we write doctor. Okay, doctor. And how it is written in abbreviated form? Doctor. Okay, profession. Okay, so this is written as. So these are called एब्रिविएशंस. और ये आपको कहाँ यूज करनी है? ये आपको अपनी नोट मेकिंग में यूज करनी है. इन सब हेडिंग्स में आपको ये यूज करनी है. ओके, अब आपने क्या करना है, मींस उसमें लिखा होता है, एक्सप्लेन होता है, अच्छी तरह से क्लियरली मेंशन होता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि यू आर टू राइट एब्रिविएशंस मिनिमम 4. तो आपने 4 तो लिखनी ही है. आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक लिखें, उससे ज़्यादा ना करें आप ना. डोंट ट्राई टू एक्सीड 6, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है. तो आप 4 से लेके 6 तक 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे. ओके, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको कैसे लिखना है. जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर डॉक्टर वर्ड था, यू हैव रिटन एन एब्रिविएशन फॉर दैट डॉक्टर. तो आप उसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यू विल राइट लाइक दिस, डॉक्टर एब्रिविएटेड फॉर्म, और उसके बाद आप इस तरह से डैश लगाएंगे और लिखेंगे डॉक्टर, उसकी फुल फॉर्म. ओके, जैसे आपने प्रोफेसर यूज किया है तो शॉर्ट फॉर्म में प्रोफ, और उसके सामने उसकी फुल फॉर्म, तो दैट इज प्रोफेसर. ओके, इसी तरह से आपने जो और भी यूज की है उनको करना है. अब कहाँ आप एब्रिविएशंस यूज कर सकते हैं, हम उन की पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे जो हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो इस तरह से आपने 4 एब्रिविएशंस यहाँ पर लिखनी है मिनिमम. यू कैन राइट 5, यू कैन राइट 6, बट डोंट ट्राई टू एक्सीड 6 एब्रिविएशंस. आप 5 तक ही रखें, 5 या 6 तक ही रखें, उससे ज़्यादा आगे ना जाए. ओके, यहाँ पर आपको कोई नंबरिंग नहीं करनी है. 1 2 3 4 इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है. ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस शुड बी सेम. कौन सी? जो आपने पैसेज में फॉलो की है. पैसेज में फॉलो किया है, इसका मतलब कि जो एब्रिविएशन पहले यूज हुई है दैट शुड बी रिटन फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट. जो एब्रिविएशन फॉर्म आपने यूज किया है उस तरह से आपने कंटिन्यू लिखते जाना. ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर नोट मेकिंग. सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ए. नाउ लेट्स टेक पार्ट बी. पार्ट बी किसका होता है? दैट इज ऑफ समरी. पार्ट बी लिखेंगे, समरी लिखेंगे, और आफ्टर दैट यू आर सपोज्ड टू राइट द समरी ऑफ द पैसेज. नाउ व्हाट आर इस समरी में क्या लिखेंगे आप? यू ट्राई टू राइट द मेजर आइडियाज ऑफ द पैसेज. ओके, एंड राइट देम इन योर ओन वर्ड्स. ओके, ट्राई टू राइट देम इन योर ओन वर्ड्स. और क्या होता है कि ज्यादा आपको उसमें 80 वर्ड्स में आपको ये समरी लिखनी होती है. अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अगर आप यू आर अनेबल, मींस आपके जो पॉइंट्स है ना, जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, they actually are the summary but they are in point form. तो आप उनको क्या करें, उन्हीं को आप सेंटेंसेस में चेंज कर दें और वो आपकी अच्छी सी समरी हो जाएगी, 80 वर्ड्स तक पहुंच जाए. यानी आपने 5 मेन हेडिंग लिखे हैं और उनके 4 आपके पास सब हेडिंग है, तो ट्राई टू राइट देम इन सेंटेंसेस.
वो दैट विल बी योर बेस्ट समरी, उससे अच्छा आपको कुछ नहीं है। और फिर एक चीज़ और भी आप ध्यान रखें कि जब समरी लिख रहे हैं तो ट्राई टू अवॉइड रेफरेंसेस, एग्जांपल्स, सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट लाइक दैट, अवॉइड गिविंग एन इंसिडेंट, इस तरह की आप चीज़ें ना लिखें। सिर्फ मेजर आइडियाज ही, मेजर फैक्ट्स जो हैं उस पैसेज के, उन्हीं को आप समरी में डिस्कस करें, यूजलेस चीज़ें समरी में मेंशन ना करें। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई देयर इज एन ऑप्शन, देयर इज ए वे स्टूडेंट्स यूज टू अटेम्प्ट समरी, कि वो क्या करते हैं कुछ एक लाइंस को ड्रॉप कर देते हैं, कुछ को लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड ए गुड समरी। ट्राई टू राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें, और जैसा मैंने बताया, इफ यू आर अनएबल टू राइट देम इन योर ओन वर्ड्स, ट्राई टू पुट द फैक्ट्स, पुट द जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं उन्हीं को आप सेंटेंस फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे, उन्हीं को चेंज कर दे, वो आपके लिए दैट विल बी ए गुड समरी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन बी, है ना, 80 वर्ड्स में होता है, तो हाफ ऑफ द पेज इज सफिशिएंट फॉर दैट। आप समरी के लिए हाफ ऑफ द पेज यूज कर सकते हैं, जो आपकी आंसर शीट का एग्जाम का होता है। तो ये था आपका फॉर्मेट, पार्ट ए और पार्ट बी का। अब इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स हैं, वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, 15-20 पॉइंट्स हैं, एंड दोज पॉइंट्स 10 to 15 पॉइंट्स हैं, those will be discussed in the next lecture. For now and for this lecture, that's what I have. Let's see you in the next lecture. Thank you.